السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امداداللہ MM کمپیوٹرز پر آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں امپیج اردو کا لیسن نمبر 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امپیج کے اندر پیمائشی یونٹس تبدیل کرنے کا طریقہ جانا تھا۔ اسی طرح ہم نے اپنی مرضی کا کی بورڈ منتخب کرنے کا بھی طریقہ جانا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم نیو ڈاکومنٹ ڈائلاگ باکس کے اندر موجود ان تمام آپشنز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ اسی طرح امپیج کے انٹرفیس کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے MM کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکے۔ تو چلیے دوستوں، اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نیو ڈاکومنٹ ڈائلاگ باکس کے اندر موجود ان تمام آپشنز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تو دوستوں، اس ڈائلاگ باکس کے اندر جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ پیج کا ہے۔ اس آپشن کی مدد سے آپ اپنی مرضی کا کسی بھی سائز کا کوئی بھی پیج منتخب کر سکتے ہیں۔ آپ کی ضرورت جس سائز کی ہے، اپنی ضرورت کے مطابق آپ یہاں سے پیج منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر موجود اس چھوٹے سے بٹن پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے کچھ بنے بنائے پیجز آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی ضرورت ان پیجز میں سے کسی پیج کی ہے تو اس سائز کے پیج کو آپ یہاں سے منتخب کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا سائز ہے وہ A4 کا سائز ہے۔ A4 کے سائز کا پیج پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لیٹر کا جو سائز ہے اس کا بھی استعمال کافی زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں پر کافی سارے بنے بنائے پیجز موجود ہیں۔ اگر آپ کی ضرورت ان میں سے کسی پیج کی ہے تو اس کو آپ یہاں سے منتخب کر کے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی سائز منتخب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کسٹم کا سائز موجود ہے۔ مثلا اگر آپ کو 5x8 کا پیج چاہیے تو آپ یہاں پر 5x8 کی ویلیو کو انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے 5x8 کا پیج آ جائے گا۔ الغرض آپ کی ضرورت جس بھی سائز کی ہے، اپنی ضرورت کے مطابق آپ یہاں سے کسی بھی سائز کے پیج کو منتخب کر کے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو آپشن ہے وہ اورینٹیشن کا ہے، اور اس کے نیچے دو آپشنز موجود ہیں۔ ایک آپشن پورٹریٹ کا ہے اور دوسرا لینڈسکیپ کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پیج عمودی چاہیے تو آپ پورٹریٹ کے آپشن کو سلیکٹ رکھ کر اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کا جو پیج ہے وہ عمودی طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی ضرورت لینڈسکیپ کی ہے، یعنی آپ کو پیج افقی چاہیے، تو آپ لینڈسکیپ کے آپشن کو سلیکٹ رکھ کر اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کا جو پیج ہے وہ افقی طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو آپشن ہے وہ پیجز کا ہے۔ آپ جس فائل پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ کو کتنے پیجز چاہیے اس کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ضرورت ایک پیج کی ہے تو آپ اس آپشن کے اندر کوئی تبدیلی کیے بغیر آگے بڑھیں گے، لیکن اگر آپ کی ضرورت زیادہ پیجز کی ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے پیجز منتخب کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلا والا جو آپشن ہے
वो मार्जिन्स का है। तो दोस्तों, जिस तरह जब हम किसी पेपर पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो उस वक्त हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ फासला छोड़कर अपनी लिखाई स्टार्ट कर लेते हैं, इसी को मार्जिन्स कहते हैं। तो इन पेज के अंदर भी जब हम किसी पेज पर अपना काम स्टार्ट करेंगे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ पर भी हम कुछ फासला छोड़कर अपना काम शुरू करेंगे और इसी को मार्जिन्स कहते हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पर इन पेज के अंदर चारों तरफ से आधे आधे इंच के मार्जिन्स छोड़े गए हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप इस साइज को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना साइज मौजूद है ये सबसे बेस्ट है। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि किसी भी किस्म की तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा हम मार्जिन्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम ओके का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको चारों तरफ से कुछ खाली जगह नज़र आ रही है जो कि मार्जिन्स कहलाते हैं। नीचे की तरफ से भी यहाँ पर हमारे पास आधे इंच के मार्जिन्स मौजूद हैं। तो इस साइज़ को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट तौर पर रखा गया है चारों तरफ से आधा आधा इंच, ये साइज़ सबसे बेस्ट है। लिहाजा इसके अंदर किसी भी तरह की तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। अगला ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्शन का है और फिर इसके नीचे दो ऑप्शन मौजूद हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जबकि डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पर राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन सेलेक्ट है, चूँकि इन पेज को हम ज़्यादातर उर्दू टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो राइट टू लेफ्ट होता है। हम दाएं से शुरू करके बाएं की तरफ बढ़ते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर राइट टू लेफ्ट का जो ऑप्शन है वो डिफ़ॉल्ट तौर पर सेलेक्ट है। लेकिन अगर आप इन पेज के अंदर कोई इंग्लिश का काम करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप डायरेक्शन को लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश को जब हम टाइप करते हैं तो हम लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ज़्यादातर इन पेज के अंदर हम उर्दू का काम करते हैं तो इस वजह से यहाँ पर राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन सेलेक्ट है। अगला ऑप्शन कॉलम्स का है और यहाँ पर इस वक्त एक मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हम जो पेज ले रहे हैं उसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम होगा, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत एक से ज़्यादा कॉलमों की है तो वो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। मसलन अगर एक पेज के अंदर आपको 4 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर 4 की वैल्यू को टाइप करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक पेज के अंदर 4 कॉलम बनकर सामने आ जाएंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास 2 कॉलमों के बीच के स्पेस का है। डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पर ये वैल्यू दर्ज होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस वैल्यू को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पर ये वैल्यू मौजूद है। अब हम ज़रा इसको भी देख लेते हैं। ओके का बटन प्रेस करते हैं तो दोस्तों, ये हमारे पास 2 कॉलम हैं और यहाँ पर ये जो छोटी सी जगह आपको नज़र आ रही है ये 2 कॉलमों के बीच का स्पेस है। ये हर 2 कॉलमों के बीच मौजूद हैं। अगर आप इस स्पेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर मौजूद इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी ज़रूरत के ऊपर है। आपकी ज़रूरत जितना है उतना ही आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे। इससे अगला ऑप्शन ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स का है, जिसके अंदर चेक लगा हुआ है। इसको आपने इसी तरह ही रहने देना है। इसके अंदर किसी भी तरह से तब्दीली नहीं करनी है। जबकि अगला जो ऑप्शन है डबल साइडेड का, जैसे ही हम इसके अंदर चेक लगा लेते हैं तो फेसिंग पेजेस का ऑप्शन भी हमारे पास अनेबल हो जाता है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम आगे चलकर मास्टर पेज के अंदर किताब के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इस ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। अगला जो ऑप्शन है सेव एज डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर
आपने जो भी तब्दीली कर ली, अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई न्यू फाइल लूँ तो हमारे सामने इसी तरह का फाइल खुले, तो आप इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें कभी A4 का पेज चाहिए होता है, कभी हमें कस्टम पेज चाहिए होता है, इसी तरह कभी हमें पोर्ट्रेट के अंदर पेज चाहिए होता है, जबकि कभी हमें लैंडस्केप के अंदर चाहिए होता है। इसी तरह कभी कभार हम मार्जिन्स के साइज को भी तब्दील कर लेते हैं, तो इस साइज को बतौर डिफ़ॉल्ट के सेव करना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमें इन तमाम ऑप्शंस के अंदर बार बार तब्दीली की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हम इस वाले साइज को सेव एज डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से इस साइज को डिफ़ॉल्ट तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब हम ओके का बटन प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने इमेज का इंटरफेस है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपको पट्टी नज़र आ रही है, जहाँ पर इमेज लिखा हुआ है और उससे आगे फाइल का नाम लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसको टाइटल बार कहा जाता है। यहाँ पर आपके फाइल का नाम आ रहा होता है। क्योंकि हमने अभी तक इस फाइल को सेव नहीं किया है, तो इस वजह से हमारे पास इसका कोई ख़ास टाइटल नहीं आ रहा है, बल्कि जो डिफ़ॉल्ट टाइटल है वो हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप इस फाइल को कोई नाम देकर उसको सेव करेंगे तो यहाँ पर वही नाम आ रहा होगा। चुनांचे हम इसको सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पर, हम इसको टेस्ट फाइल के नाम से सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है, जो कि इस फाइल का नाम है। तो इस वाली पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है और इसके बिल्कुल आखिर में यहाँ पर 3 बटन मौजूद है। पहला बटन मिनिमाइज का है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इमेज मिनिमाइज होकर टास्क बार पर आ जाता है। जबकि दूसरा जो बटन है वो रिस्टोर का है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इमेज रिस्टोर होकर हमारे सामने आ जाता है। जबकि तीसरा जो बटन है वो क्लोज का है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इमेज हमारे पास बंद हो जाता है। इसके नीचे जहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू वगैरह लिखा हुआ है, इसको मेन्यू बार कहा जाता है। इन तमाम मेन्यूज़ के बारे में हम आगे चलकर तफसील से पढ़ेंगे। जबकि यहाँ पर ये जो कुछ बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये रिबन्स कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो पट्टी है यहाँ तक, ये टूल बार कहलाता है। जबकि ये ऊपर नीचे जहाँ पर कुछ नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये रूलर्स है, ये स्केल है। जबकि यहाँ पर हमारे सामने एक पट्टी सी बनी हुई है, जिसकी मदद से हम अपने फाइल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। अब यहाँ पर कोने में एक एम का बटन बना हुआ है, ये मास्टर पेज का ऑप्शन है। इसी की मदद से हम किताब को तैयार करते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो बॉक्स है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी फाइल के अंदर पेजेस होते हैं उनकी तादाद आ रही होती है। इस वक्त हमारे पास इस फाइल के अंदर एक पेज मौजूद है, तो यहाँ पर 1 of 1 आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास एक फाइल के अंदर ज़्यादा पेजेस होंगे तो उन तमाम पेजेस की तादाद यहाँ पर आ रही होगी। इसी तरह यहाँ पर इसके बराबर में ये जो बॉक्स है, जिसके अंदर इस वक्त 100% आ रहा है, ये जूम इन और जूम आउट करने के लिए है। अगर आप अपने फाइल को जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं, और इस ऑप्शन की मदद से आप अपने फाइल को ज़्यादा से ज़्यादा 300% तक जूम कर सकते हैं। इस वक्त हमारा जो फाइल है वो 100% जूम है, लेकिन अगर हम अपने फाइल को 200% जूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 200 टाइप करके और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो फाइल है वो 200% जूम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अपने फाइल को 300% तक जूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 300 टाइप करके कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो फाइल है वो 300% तक जूम हो जाएगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट तौर पर हमारा जो फाइल है वो 100%
जूम होता है, आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक 300% तक जूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर उर्दू लिखा हुआ है। चूँकि इमपेज उर्दू को ज़्यादातर हम उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, इस वजह से डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आपने इमपेज के अंदर इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको इंग्लिश के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम इमपेज को उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास उर्दू ही आ रही होती है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश का कोई काम करना है तो जहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है इस वाले बॉक्स के अंदर क्लिक करके आप उर्दू से इंग्लिश पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स के अंदर मौजूद इन तमाम ऑप्शंस के बारे में जानकारी हासिल की। साथ साथ हमने इमपेज के इंटरफेस के बारे में भी जानकारी हासिल की। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।